Hello dear students, today Maths 2 chapter number 2 sequences and series exercise 2.2. Now see question number 4. For a GP, that is geometric progression. Question number first, if T3 equal to 20 and T6 equal to 160, find S7. So what is the meaning of question here? T3, that is third term of a GP, is 20. It is given in the question. Third term T3 equal to 20 and sixth term T6 equal to 160. We have to find sum of 7 terms of this GP. For the solution, see this, since formula for Tn, तो Tn के लिए formula क्या है यहाँ पर? Tn equal to a into r raised to n minus 1, where a stands first term and r stands common ratio of that GP, that is geometric progression. GP means geometric progression or geometric series. Since T3 equal to 20 it is given and T6 equal to 160 given. So according to Tn formula, Tn equal to a into r raised to n minus 1. Tn equals a into r raised to n minus 1. So T3 equal to a into r raised to 3 minus 1 equal to 20 here. So therefore ar square equal to 20 and let it be equation first. Similarly, अब T6 के लिए क्या करना है? देखो T6 160 it is given in the question. So T6 160 given है यहाँ पर. तो according to Tn formula, Tn equal to a into r raised to n minus 1, that is T6 becomes a into r raised to 6 minus 1 equal to 160. So therefore a into r raised to 5 equal to 160 and let it be equation number 2. So what is the relation between equation 1 and equation 2? देखो a r square is 20, a r raised to 5 equal to 160. बट वी नीड टू फाइंड S7 और S7 फाइंड करने के लिए हमें जरूरत है A एंड R. तो हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो दोनों ही हमको फाइंड करना है. टू फाइंड A एंड R, व्हाट शुड यू डू? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. So you can say from first and second, a into r is to 5 upon a r square equal to 160 upon 20. अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड upon इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो इक्वेशन सेकंड in the numerator on both sides and equation first in the denominator on both sides. So a r raised to 5 equal to 160 and a r square is 20. ये रहा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इनको दोनों को डिवाइड किया गया. तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या यहाँ पर टर्म आता है? तो we get a term here, a going by a, r raised to 5 upon r square becomes r cube and 160 upon 20 becomes 8. So r cube equal to 8, that is r cube equal to 2 cube, therefore r equal to 2. तो हमें मिल गई यहाँ पर वैल्यू ऑफ r. तो वी गेट कॉमन रेशियो वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 2. अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब इस आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ r वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, दैट इज फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म के लिए हमें क्या करना होगा? वी शुड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 2 ईदर इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकंड. किसी भी एक इक्वेशन में इजिली फाइंड करके निकाल सकते हो. तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग r इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, therefore a into square of 2 equal to 20 and square of 2 becomes 4. So a into 4 equal to 20, therefore a equal to 20 upon 4 becomes 5. तो a equal to 5 and r equal to 2. अब हमें बोथ वैल्यूज मिल चुकी हैं, a equal to 5 and r equal to 2. नाउ यूजिंग SN फार्मूला. और SN फार्मूला अप्लाई करने के पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए कि r का वैल्यू जो 2 है इट इज ग्रेटर देन 1. तो r इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1. सो वी शुड अप्लाई द फार्मूला SN इक्वल टू a इंटू r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए SN इक्वल टू a इंटू r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड r. तो देयरफॉर S7, क्योंकि हमें फाइंड करना है S7, तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या रखा गया? 7. तो S7 इक्वल टू value of a, that is 5 into 2 raised to 7 minus 1 upon 2 minus 1. But 2 raised to 7 becomes 128. तो it is equal to 5 into 128 minus 1 upon 1. और यहाँ 128 minus 1 that is 127. So 5 multiplied by 127. तो 5 को इससे चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं. We get 635. Therefore S7 equal to 635
विच इज सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी। तो गिवन जीपी जो जिसमें हमें T3 एंड T6 गिवन था, तो T3 एंड T6 के हेल्प से हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर सम ऑफ 7 टर्म्स। तो सिमिलरली अगर मान लो कि क्वेश्चन में यहाँ पर S7 फाइंड करना था, S9, S10, S20, S100, S99, S1000, तो एनी टर्म यू कैन फाइंड। लेकिन अगर इसके 2 अभी यहाँ पर है 2 7, तो मान लो कि भी हमको यहाँ पर फाइंड करना है सम ऑफ 1000 टर्म्स, तो सम ऑफ 1000 टर्म्स तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1000। तो that number is so large, so as it is you can left in the answer 5 into 2 raised to 1000 minus 1 upon 1, that is 5 into 2 raised to 1000 minus 1 अगर ऐसा पूछा गया तो। अदरवाइज दिस इज योर फाइनल आंसर S7 इक्वल टू 635। और जो भी स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन तक अभी क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं और चैनल पर न्यू है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, और इसके बाद जितने भी हमारे न्यू वीडियोज अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएंगे। और प्रीवियस वीडियोज में जाकर के प्रीवियस एक्सरसाइजेस और प्रीवियस चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू समझ में आएगा। और क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइजेज में प्रीवियस वीडियोज में मेनी फार्मूले, रूल्स और जो उनके प्रॉपर्टीज हैं, ट्रिक्स, बहुत कुछ बताया गया है, वो सब प्रीवियस वीडियोज में जाकर के देख सकते हो। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इफ T4 मींस फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इक्वल टू 16 एंड नाइन्थ टर्म ऑफ अ जीपी इक्वल टू 512, फाइंड S10 दैट इज सम ऑफ 10 टर्म्स। तो T4 इक्वल टू 16, T9 इक्वल टू 512, फाइंड S10 sum of 10 terms of a GP. So for the solution, see this, since Tn equal to A into R raised to n minus 1, सबसे पहले ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिख लेना चाहिए, जिससे इस फॉर्मूले को एक बार यहाँ पर लिख दे। अगर पूरे क्वेश्चन में एवरी टाइम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि हमें जितनी बार जरूरत है टीएन के लिए उतने टाइम्स हम फॉर्मूले को लिखें, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। ये वन टाइम हमने एक क्वेश्चन में वन टाइम लिख दिया फॉर्मूला, दैट वन इज एनफ। तो where A stands first term of the GP and R is the common ratio of the GP. Since T4 equal to 16, तो यहाँ पर हमें नोट करना चाहिए सोल्यूशन में वापस से T4 इक्वल टू 16 एंड T9 इक्वल टू 512। ये 2 टर्म्स हमारे पास हैं गिवन, एक T4 जिसका वैल्यू है 16 और एक है T9 जिसका वैल्यू है 512। अब इसके बाद हमें यहाँ Tn फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, तो T4 बिकम्स A इंटू आर रेज टू 4 minus 1 equal to 16 and T9 becomes A into R raised to 9 minus 1, that is 512. So A R raised to 4 minus 1, that is A into R cube equal to 16. Let it be first equation and A R raised to 8, क्योंकि यहाँ 9 minus 1 है तो यहाँ से आ गया यहाँ पर A R raised to 8 equal to 512. Let it be equation number 2. तो यहाँ पर भी सेम थिंग यहाँ पर करना है कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो देयरफॉर डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि ए आर रेज टू 8 अपॉन ए आर क्यूब इक्वल टू 512 अपॉन 16। तो यहाँ लिख सकते हो सिंस ए इंटू आर रेज टू 8 अपॉन ए आर क्यूब इक्वल टू 512 अपॉन 16 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ऐसा भी डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर वे से सॉल्व किया है। तो सिमिलर वे से यहाँ पर सॉल्व किया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोल सकते हो कि ये भी क्वेश्चन ठीक उसी टाइप से ही सॉल्व होगा। तो a इंटू आर रेज टू 8 अपॉन ए आर क्यूब बिकम्स आर रेज टू 5, बिकॉज a गोइंग बाई a एंड आर रेज टू 8 अपॉन आर क्यूब बिकम्स आर रेज टू 5। और यहाँ 512 अपॉन 16 दैट इज 32 डिवाइड हो गया। तो आर रेज टू 5 इक्वल टू 2 रेज टू 5। देखो एक 32 क्या है, दिस इज 2 रेज टू 5। 2 का पावर अगर हम 5 लिखते हैं तो क्या आता है 32। तो आर रेज टू 5 2 रेज टू 5, देयरफॉर आर इक्वल टू 2। तो हमें कॉमन रेशियो की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, जो कि यहाँ पर है कॉमन रेशियो, तो r इक्वल टू 2। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a इंटू 2 क्यूब इक्वल टू 16। तो 2 क्यूब क्या होता है भाई 8, चलो a इंटू 8 इक्वल टू 16, देयरफॉर a इक्वल टू 2। अब हमारे पास वैल्यू ऑफ a भी अवेलेबल है और वैल्यू ऑफ r भी अवेलेबल है, बट बोथ आर सेम। तो लकीली बोथ आर सेम, ऐसा नहीं कि एवरी क्वेश्चन में सेम ही आने वाला, जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिए वहां पर डिफरेंट वैल्यूज थे। यहाँ पर क्या है r इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 2। चलो कोई बात नहीं, यूजिंग SN फार्मूला। वाई SN फार्मूला,
देखो हमें फाइंड करना है S10, लेकिन Sn के भी हमारे पास 2 फार्मूले हैं, तो हमें R पर क्या करना है, अटेंशन रखना पड़ेगा। R इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, यूजिंग द फार्मूला Sn इक्वल टू A इंटू R रेज टू n माइनस वन अपॉन R माइनस वन। ये फार्मूला है R इज ग्रेटर देन 1 के लिए। तो देयरफॉर S10 की n की वैल्यू क्या है 10, तो S10 इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज टू 10 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। अभी देखो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर जब हम लोग a इंटू आर रेज टू एन माइनस वन अप्लाई करते हैं तो 4 माइनस वन इज इन द पावर, और यहाँ क्या है आर रेज टू एन माइनस वन, तो ये माइनस वन इज इन द बेस। यहाँ पर आर रेज टू एन ओनली, ये पावर में नहीं है माइनस वन, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर हो गया 2 रेज टू 10 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। अब ये 2 रेज टू 10 की वैल्यू एग्जैक्टली होती है 1024 1024, so it is equal to 2 into 1024 minus 1 upon 1, but here it is 1023 क्योंकि 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 1023 into 2 becomes 2046, that is 2046. Therefore sum of 10 terms of a GP equal to 2046 2046। इस तरह से हमको इस क्वेश्चन के दोनों ही सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और हम ये दोनों ही सिमिलर थे, दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड ट्रिकी, बट दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, या इसी टाइप के दूसरे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इधर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इन बोर्ड और इन एनीवेयर। किसी भी जगह पर ऐसा अगर पूछा गया तो हमें टीएन और एसएन के फॉर्मूले की हेल्प से ये सब क्वेश्चन को क्रैक करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। अब ये 5th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है और स्टूडेंट कभी कभी इसके आंसर्स रॉन्ग सिलेक्ट करके आ जाते हैं। फाइंड द सम टू एन टर्म्स, ये ध्यान दो, फाइंड द सम टू एन टर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस, ऐसे ही चलता रहेगा, एक एक 3 इंक्रीज होता जाएगा 3333, फिर इसके बाद 33333 एंड सो ऑन, ऐसे ही 3333 प्लस 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 अपना इंक्रीज होता जाएगा, और इस तरह से हमको इसका सम निकालना है। तो अगर ये n टर्म्स तक ऐसे इंक्रीज होता रहा, मान लो कि 10 टर्म्स 20 25 19 100 जो भी टर्म्स यहाँ पर हमें दे दिया जाए, अभी तो यहाँ पर n है, तो अगर हम लोग n के लिए सॉल्व करते हैं तो फिर n की वैल्यू रख करके हम किसी के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि व्हाट इज द सोल्यूशन। और इसी तरह से एक सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर है जिसके बारे में हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर वापस आएंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। नाउ सी सोल्यूशन फर्स्ट। फर्स्ट वन हियर, ये सोल्यूशन यहाँ पर हो गया। तो 3 गिवन सीक्वेंस यहाँ क्या है, 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3333 प्लस अप टू n टर्म्स। तो n टर्म्स तक हमें इसका सम फाइंड करना है, बट हाउ, मेन प्रॉब्लम यहां पर है। तो अगर हमारे पास ये 3 3 3 3 3 4 टाइम्स 3 एंड सो ऑन कंटिन्यू चल रहा है, तो अगर हम लोग देखें, अगर कम से कम हम 20 टर्म्स तक ही जाते हैं तो एक ऐसा टर्म जो आएगा जिसमें 20 टाइम्स 3 रहेगा, सो लार्ज नंबर। और अगर हम लोग 100 टाइम्स जाते हैं तो एक ऐसा टर्म आएगा जो 100th टर्म होगा, लेकिन उसमें 100 टाइम्स 3 रहेगा, सो लार्ज नंबर। बट with the help of geometric progression GP formula you can find the sum of that all terms, जितने भी टर्म्स यहां दिए हैं, ऐसा नहीं कि एक टर्म, ऑल टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इस टेक्निक को, इस ट्रिक को देखते हैं कि इस ट्रिक को कैसे सॉल्व किया जाए और अप्लाई कैसे किया जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या है। तो ये टाइप का अगर जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उस नंबर को हम लोग करते हैं कॉमन। क्या करना है, कॉमन कर लेते हैं। हियर 3 इज कॉमन, 3 कॉमन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर आ गया 1, ये हो गया डबल 1, यहाँ पर ट्रिपल 1, यहाँ पर 4 टाइम्स 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स लिख सकते हो यहाँ पर। अब इसके बाद ये जो 1 1 1 1 यहाँ पर सब आते हैं, 1 प्लस डबल 1 ट्रिपल 1 प्लस 4 टाइम्स 1 एंड सो ऑन, तो इनको हमें 9 में कन्वर्ट करना है। तो 9 में कन्वर्ट करने का रीजन मैं आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले 9 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाइंग बाय 9 एंड डिवाइडिंग बाय 9 कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय 9 एंड डिवाइडिंग बाय 9, ये करने के लिए हमें डिवाइडिंग बाय 9 आउट ऑफ द ब्रैकेट और मल्टीप्लाइंग बाय 9 इन ईच, तो यहाँ पर 9, यहाँ पर हो गया डबल 9 ट्रिपल 9 4 टाइम्स 9 एंड सो ऑन। बोलोगे सर ऐसा ही क्वेश्चन फिर से हो गया है कि 999 999 प्लस 9999 एंड सो ऑन।
तो ये क्वेश्चन ऐसा रिपीट होते जा रहा है। अब इसके बाद ये 3/9 है, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10-1। अब समझ गए 9 लिखने का रीजन जो था कि इसको हम लोग इजिली 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 9 इक्वल टू 10-1, 99 इक्वल टू 100-1, दैट इज 10 स्क्वायर माइनस 1, 999 मीन्स 999 दैट इज 10 क्यूब माइनस 1 या 1000-1, और यहाँ पर वैसा ही 10,000-1 दैट इज 9,999 प्लस अप टू n टर्म्स। नाउ वी शुड सेलेक्ट, अभी जितने 10 वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। और देखो 3/9 क्या हो गया, 1/3, 3 3 जा 9, कट कर दो इसको, 1/3 हो गया। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई, अब जितने 10 वाले टर्म्स हैं वो सबको फर्स्ट लिखा जा रहा है, तो 10 फर्स्ट टर्म ऑफ ईच, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ईच, ऐसा ईच ब्रैकेट। तो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10⁴ एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब इसके बाद आता है -1 -1 -1 -1 -1 एंड सो ऑन, ये भी n टाइम्स या n टर्म्स चलेगा। तो माइनस साइन कॉमन इन द ब्रैकेट 1 + 1 + 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो अब ये फर्स्ट ब्रैकेट को देखो, 10 + 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10⁴ एंड सो ऑन, दे आर इन जीपी। और जीपी में होते हुए इनका फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 10, और कॉमन रेशियो क्या आता है, 10 स्क्वायर अपॉन 10 दैट इज 10, 100/10 करोगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। क्लियर हो गया। तो a इक्वल टू 10, r इक्वल टू 10, फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन रेशियो इज 10, और जो लास्ट में 1 + 1 + 1 + 1 + n टाइम्स या n टर्म्स, तो उसका सम n ही होगा, क्योंकि अगर हम 1 + 1 + 1 + 5 टाइम्स ऐड करते हो तो 5, 10 टाइम्स ऐड करते हो 10, 20 टाइम्स ऐड करते हो 20, ठीक इसी तरह से 100 टाइम्स ऐड करते हो 1 + 1 + 1 + 1 तो 100 ही रहेगा। तो सिमिलरली इफ वी ऐड 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स इट बिकम्स n। तो आगे का एक्सप्लेनेशन अब क्लियर हो गया होगा कि ये जो लास्ट के सभी 1 + 1 + 1 है यहाँ पर, इनका सम क्या हो गया, n। ठीक है, तो ये -n यहाँ पर लिख दिया। अब जो हमारे पास ये 1/3 एज इट इज, और ये ब्रैकेट का सम दे आर इन जीपी and their r is greater than 1, so applying the formula for gp, a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, देखो 10 into 10 raised to n minus 1 upon 10 minus 1, और माइनस n एज इट इज रखते हैं। तो 1/3 एज इट इज 10 into 10 to the power n minus 1, और ये 10 minus 1 क्या है, 9, तो 9 into n कर दो यहाँ पर, ठीक है, 9n हो गया। तो 10 into 10 raised to n minus 1 minus 9n entire upon 9, तो ये 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 10 into 10 raised to n minus 1 minus 9n upon 9, तो ये भी डिनोमिनेटर में है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में, तो 9 3 जा 27, देयरफॉर सम टू n टर्म्स दैट इज Sn इक्वल टू 1/27 into 10 into 10 raised to n minus 1 माइनस 9n, तो ये इसका जनरल टर्म ही हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर आ गया ये टर्म। अगर मान लो इसको कट नहीं करना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ 3/9 को 1/3 कर दिया, सपोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो ये 9 ही रहेगा, और यहाँ भी एक 9 आता है, तो 9 9 जा 81, तो यहाँ 3 दिखेगा, 3/81 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 माइनस 9n, तो 3/81 भी लिख सकते हो यहाँ पर। अगर कोई ऐसा किसी को डाउट लग रहा है तो 3/81 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट इट इज डिविजिबल सो यू शुड डिवाइड इट। तो अब इसके बाद हमें यहाँ क्या करना चाहिए, देखो ये तो हो गया जनरल टर्म। अब इसी तरह से अगर मान लो इसका हमें सिर्फ और सिर्फ 5 टर्म्स के लिए निकालना है, तो n इक्वल टू 5 बोथ द प्लेसेस, 10 के लिए 10 n इक्वल टू 10 बोथ, 100 के लिए n इक्वल टू 100 एंड सो ऑन। तो जितने टर्म के लिए फाइंड करना है ऐसे सीरीज के लिए उतना n की वैल्यू रखो, तो ये ऑलवेज एक फिक्स्ड और एक जनरल टर्म है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि मोस्टली ये सब NDA, CA फाउंडेशंस या अदर क्वेश्चंस, बैंकिंग, रेलवेज, सैट, कैट, ये सभी में ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो इनको बहुत केयरफुली सॉल्व करना चाहिए। और ये जनरल टर्म का प्रैक्टिस करके इसको ध्यान में रखना चाहिए कि यही हमारा जनरल टर्म है। ये आउटसाइड जो नंबर आएगी, जो भी नंबर यहाँ पर है, जैसे 3 के सीक्वेंस में है तो 3/81 होगी, और अगर मान लो कि अभी जैसा हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आगे आने वाला क्वेश्चन है, तो 8 के सीक्वेंस में है, तो वहाँ पर 8/81 करोगे और विल बी सेम, ये ब्रैकेट विल बी सेम, तो दैट वन इज आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। बट वी शुड डिस्कस हियर अबाउट सेकंड क्वेश्चन।
तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8 प्लस डबल एट प्लस ट्रिपल एट प्लस 4 टाइम्स 8 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। तो दोनों ही क्वेश्चन एन टर्म्स के लिए हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं कि दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर जो भी टेक्निक या ट्रिक अप्लाई करना है वो भी ट्रिक सिमिलर है, लेकिन उसको भी बहुत केयरफुली सॉल्व करने की जरूरत है। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, 8 प्लस डबल एट प्लस ट्रिपल एट प्लस 4 टाइम्स 8 प्लस अप टू एन टर्म्स। तो सबसे पहले जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया कि वी शुड टेक कॉमन 8। तो टेकिंग कॉमन 8 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर आता है 1 प्लस डबल वन प्लस ट्रिपल वन प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस अप टू एन टर्म्स। तो ये सभी टर्म्स यहाँ पर हो गए, राइट, 1 1 1 के टर्म में। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ दिस क्वेश्चन वी शुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो इनसाइड द ब्रैकेट इन ईच, एंड डिवाइड बाय 9 आउटसाइड द ब्रैकेट। तो ये हो गया 8 अपॉन 9। और जो हमने मल्टीप्लाई किया इनसाइड, तो ये 9 का मल्टीप्लाई जो है सब में हो जाएगा। तो 9 का मल्टीप्लाई सभी में करके क्या करते हैं, यहाँ पर 9 इंटू 1 9, 9 इंटू डबल वन 99, 9 इंटू ट्रिपल वन ट्रिपल 9, 9 इंटू 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 9 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। तो हमारे पास एक यहाँ पर एक सीक्वेंस आता है जो है 9 के टर्म्स में। तो 8 अपॉन 9 एज इट इज, नाउ इट इज इक्वल टू 8 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो 9 कैन बी रिटन एज 10 माइनस 1। 99 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1, या 10 स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर 100 है, 100 माइनस 1 10 स्क्वायर माइनस 1, ट्रिपल 9 10 क्यूब माइनस 1, इसी तरह से 10 रेज टू 4 माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। तो ये सभी टर्म्स ऐसे कंटिन्यूअस करते चले जाओ करते चले जाओ। तो जैसे ही ये ब्रैकेट रेडी होता है तो हमें क्या करना चाहिए, 8 अपॉन 9 एज इट इज, टेकिंग फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ब्रैकेट, मीन्स अभी जो हमारे 10 वाले टर्म्स हैं उनको हम एक ब्रैकेट में कलेक्ट करते हैं। तो वी गेट हियर 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, माइनस, अब जो यहाँ पर माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो प्लस यहाँ लिख करके माइनस वन माइनस वन माइनस वन लिखो, या माइनस साइन कॉमन, तो वी गेट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। तो ये जो हमारे पास टर्म्स आया, अब देखो इट इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो 8 अपॉन 9 को हम लोग यहाँ पर एज इट इज रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 अपॉन 9 विल बी सेम। बट 10 plus 10 square plus 10 cube up to n terms are in GP. Here a equal to 10 means first term of the GP a10. Common ratio is also 10. 10 square upon 10, that is 10. Formula SN equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. This is SN formula for GP. So it is equal to 8 upon 9. 10 into 10 raised to n minus 1 upon 10 minus 1. ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट के लिए यहाँ तक। माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अभी अभी मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया इसके लिए, तो इट बिकम्स माइनस एन। सो इट इज इक्वल टू 8 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10 रेज टू एन माइनस 1। यहाँ देखो 10 माइनस 1 9 हो गया था, तो 9 इंटू एन एंटायर अपॉन 9, तो हो गया 10 इंटू 10 रेज टू एन माइनस 1 माइनस 9 एन अपॉन 9। अब देखो 8 अपॉन 9 और यहाँ पर है इंटू 1 अपॉन 9, तो ये 9 इंटू 9 इन द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 81। तो देयरफॉर सम ऑफ गिवन सीक्वेंस SN इक्वल टू 8 अपॉन 81 इंटू 10 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 माइनस 9n। ये टर्म है हमारे पास SN इक्वल टू 8 अपॉन 81 10 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 माइनस 9n। ये टर्म रहा यहाँ पर, जो कि एकदम बहुत ही क्लियर टर्म है, बहुत ही अच्छा टर्म है। SN इक्वल टू दिस मच। तो देखो यहाँ पर भी फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है। फर्स्ट सीक्वेंस में मिला 3 डबल 3 ट्रिपल 3 4 टाइम्स 3 एंड सो ऑन, जिसका आंसर इसी के फॉर्मेट में था, सिर्फ आउटसाइड द ब्रैकेट नंबर हमें चेंज करनी होती है। और सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आया 8 प्लस 8 डबल 8 ट्रिपल 8 एंड सो ऑन, तो उसका भी आंसर हमारे पास अवेलेबल हो गया। इस तरह से अगर ये सीक्वेंस 7 के सीरीज में है तो 7 अपॉन 81, 5 के सीरीज में है तो 5 अपॉन 81, 4 के सीरीज में है तो 4 अपॉन 81 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर हमेशा फिक्स रहेगी और एक जनरल टर्म में यहाँ पर मिल जाता है, तो इस जनरल टर्म को हमेशा रिमेंबर रखना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली यू कैन
सेलेक्ट योर ऑप्शन। तो आइए अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमें n टर्म्स तक लेके जाता है और n टर्म्स इसका भी हमें सम निकालना है। अब हमारे पास जब इसके पहले जो क्वेश्चंस आए थे वो सभी इंटीजर्स में थी नंबर, अब यहाँ पर है डेसिमल्स, तो 0.4, 0.44, 0.444, 0.4 टाइम्स 4 एंड सो ऑन। ये सभी नंबर्स हमें सॉल्व करने हैं, प्लस करने हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐड करने चलें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैनी आवर्स, बहुत से डेज लग जाएंगे, फिर भी ये प्लस करके ख़त्म नहीं होगा। अगर हम लोग कंप्यूटर या हायर लेवल का कैलकुलेटर भी यूज़ करते हैं तो भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसे ऐसे फार्मूले हैं जो n टर्म्स क्या इनफाइनाइट टर्म्स तक भी सम्स को बता सकते हैं। तो हम लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे। अभी बहुत से एक्सरसाइजेज रिमेनिंग है अपने, लेकिन अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है सामने वो क्वेश्चन है 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 एंड सो ऑन। इसका सम निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि हाउ टू फाइंड द क्वेश्चन 6th फर्स्ट। See the solution. Since 0.4 plus 0.44 plus 0.444 and so on up to n terms, इस सीक्वेंस को पहले नोट करना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, 4 कॉमन, टेकिंग 4 कॉमन, सो वी गेट 4 मल्टीप्लाइड बाय, तो एक यहाँ ब्रैकेट यूज करोगे जो सब में मल्टीप्लाई शो करेगा, तो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 अप टू n टर्म्स। देखो फिर से अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पर तो ये 0.4, 0.44, 0.444 एंड सो ऑन मिल जाएगा। लेकिन अभी 4 कॉमन करने के बाद फिर से हमें इन सभी टर्म्स को 9 में ही कन्वर्ट करना है। तो डिवाइडिंग बाय 9 आउटसाइड द ब्रैकेट, तो 4/9 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 9 इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये 0.1 इंटू 9 दैट इज 0.9, 0.11 इंटू 9 तो 0.99, 0.111 इंटू 9 तो यहाँ हो गया 0.999 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब इसके बाद 4/9 एज इट इज, ठीक है, 4/9 जैसा था वैसा ही नोट कर लोगे यहाँ पर 4/9 इंटू, अब देखो 0.9, तो 0.9 की वैल्यू क्या है, 0.9 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.1, क्योंकि 1 में से अगर 0.1 को माइनस करते हो तो क्या आएगा 0.9 प्लस 0.99, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 प्लस n टर्म्स। तो ये जो अपना 4/9 टर्म है फिक्स है, यहाँ पर ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पर देखो 1 1 1 सभी ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो कलेक्टिंग ऑल वंस इन फर्स्ट ब्रैकेट, तो इन द फर्स्ट ब्रैकेट इट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स माइनस 0.1, ये सेकंड टर्म ऑफ इज, देखो माइनस साइन कॉमन, क्योंकि माइनस है यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस साइन कॉमन इन द सेकंड ब्रैकेट 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस अप टू n टर्म्स, ये हो गया यहाँ पर। तो वी सी दैट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स बिकम्स n, इसकी वैल्यू क्या आती है n। तो 4/9 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस, अब ये जो सेकंड टर्म है सेकंड ब्रैकेट है यहाँ पर देखो 0.1 0.01 0.001, so they are in GP. Here first term a equal to 0.1 and common ratio are 0.01 upon 0.1, तो वो भी 0.1 ही आ रहा है, तो a is 0.1 and r is 0.1, both are same, but here r is less than 1। अभी जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें हमें r की वैल्यू क्या मिली थी ग्रेटर देन 1, लेकिन यहाँ पर r की वैल्यू क्या है लेस देन 1। तो यूजिंग द फॉर्मूला फॉर Sn जो लेस देन 1 के लिए बताया गया a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, क्योंकि r इज लेस देन 1। तो n माइनस ये हो गया वैल्यू ऑफ a, देखो 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 होल रेज टू n अपॉन 1 माइनस 0.1। नाउ 1 माइनस 0.1 इज 0.9।
अब यहाँ देखो 0.1 और यहाँ पर है 0.9, तो 0.1 अपॉन 0.9 बिकम्स 1 अपॉन 9, ये हो जाएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि 4 अपॉन 9 इंटू एन, जो 1 + 1 + 1 था यहाँ पर n, माइनस 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 होल रेज टू n अपॉन 0.9। अब ये जो 0.1 अपॉन 0.9 ये क्या हो गया 1 अपॉन 9, तो ये 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हो, फिर एंटायर अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक, तो 9n माइनस, क्योंकि देखो फिर से ध्यान दो 0.1 अपॉन 0.9 1 अपॉन 9 हो चुका है, तो 1 इंटू समथिंग, तो ये ब्रैकेट ही दिखेगा अगले स्टेप में, ओनली दिस। और ये 9 इंटू एन एंटायर अपॉन 9, तो एंटायर अपॉन 9 जो था तो इस 9 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ हो गया 81, 9 9 सा 81, तो 4 अपॉन 81 इंटू 9n माइनस 1 माइनस 0.1 होल रेज टू n। Therefore, sum of given sequence is 4 upon 81 multiplied by 9n minus 1 minus 0.1 whole raised to n। तो 0.1 को हम लोग 1 upon 10 भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 upon 10 raised to n, ऐसा भी लिख सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फ्रैक्शन नॉट इन डेसिमल। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें फ्रैक्शन के लिए 1 upon 10, तो 4 upon 81 इंटू 9n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू n लिख सकते हो। तो ये भी करेक्ट आंसर है और वो भी करेक्ट आंसर है, फ्रैक्शन में लिखो या डेसिमल में लिखो, बात तो एक ही है। ठीक इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो सेकंड क्वेश्चन को भी ऐसा ही सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी भी फिर से बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि समझा रहा हूँ यहाँ पर कि ये सभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर हम पेपर उठा करके देखें तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड या सेम क्वेश्चंस श्योर रिपीट किए जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आजकल हो रहे हैं तो मोस्टली उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 99% मिलने ही वाला है। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाइए। हाँ, कभी कभी थोड़ा चेंजेस होते हैं तो उस क्वेश्चन को भी इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड। फाइंड द सम टू n टर्म्स, फाइंड द सम टू n टर्म्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस एंड सो ऑन, तो ये हमें n टर्म्स के लिए लेके जाना है। तो आइए सोल्यूशन में देखते हैं। फॉर द सोल्यूशन 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो अकॉर्डिंग टू इट्स रूल सबसे पहले हमें क्या करना है 7 कॉमन, टेकिंग 7 कॉमन, और एक ब्रैकेट यहाँ श्योर यूज करो, अदरवाइज इट विल नॉट बी मल्टीप्लाइड इन ऑल द टर्म्स। कुछ लोग ब्रैकेट्स नहीं लिखते, अगर ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है तो वहां पर ब्रैकेट लिखना, बोर्ड या कॉलेज या कोई स्कूल लेवल का भी अगर कभी इस क्वेश्चन को पूछा गया, समटाइम्स कोई कोई बोर्ड में है जीपी, तो वहां पर यहाँ ब्रैकेट यूज करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो ब्रैकेट तो ब्रैकेट है, तो नहीं, ब्रैकेट ब्रैकेट है लेकिन उसको यूज करो, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 तो कॉमन कर लिए, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या आएगा यहाँ पर 0.1 0.11 0.111 प्लस एन टर्म्स। अब इसके बाद मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9, तो आउटसाइड हो गया 7 अपॉन 9, जो हमने डिवाइड किया बाहर रखते हैं, और जो मल्टीप्लाई करना है इनसाइड द ब्रैकेट, तो हो गया 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। नाउ इट इज इक्वल टू 7 अपॉन 9, 7 अपॉन 9। अब यहाँ पर 0.9 0.9 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01, और 999 के लिए 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो ये हमारे पास फिर से देख लो कि 0.9 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.1, 0.99 1 माइनस 0.01, 0.999 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग के ये टर्म्स चलते रहेंगे, तो कितना भी लिखें तो यहाँ पर प्लस डॉट डॉट एंड n टर्म्स। नाउ वी शुड कलेक्ट ऑल वंस इन द फर्स्ट ब्रैकेट, 1 प्लस 1 प्लस 1, सभी में 1 है। तो आइए देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। इट इज इक्वल टू 7 अपॉन 9 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स। नाउ माइनस 0.1, तो देखो माइनस 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 सब में नेगेटिव टर्म है, तो माइनस साइन कॉमन इन द ब्रैकेट 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस
अप टू n टाइम्स या n टर्म्स जो भी लिखो। तो वी सी दैट 1 + 1 + 1 + up to n terms it becomes n. So it is equal to 7/9 multiplied by n minus they are in GP. A is 0.1, R is 0.1. Both are same क्योंकि 0.01/0.1 becomes 0.1. तो A भी 0.1 है और R भी 0.1 है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी इजिली सॉल्व कर लेते हैं। A into 1 minus R raised to n that is 0.1 raised to n upon 1 minus 0.1. अब इसके बाद 1 minus 0.1 that is 0.9. तो it is equal to 7/9 और यहाँ पर 1 + 1 + 1 + n हो चुका है तो n माइनस दिस, तो यहाँ भी n ही रहेगा, n एज इट इज माइनस 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 होल रेज़ टू n अपॉन 0.9। अब ये टर्म जो है देखो 0.1 अपॉन 0.9 बिकम्स 1/9, तो ये 1 इंटू सिर्फ ये ब्रैकेट ही दिखेगा इधर और ये 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं तो 7/9 एज इट इज 9n, देखो 9 ये 9 हो चुका है क्योंकि यहाँ 0.1/0.9 डेसिमल खत्म हो जाएंगे 1/9 ओनली, तो 9 1 जा 9n माइनस 1 माइनस, अब देखो 0.1, चलो इस क्वेश्चन में मैं 1/10 लिख के दिखा देता हूँ, तो 0.1 कैन बी रिटन एज 1/10, तो 1/10 होल रेज़ टू n एंटायर अपॉन 9, जो यहाँ पर 9 था वो एंटायर अपॉन 9 हो गया अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 7/9 और यहाँ भी डिनोमिनेटर में 9 है तो ये हो गया 9 इंटू 9 बिकम्स 81, तो 7/81 इंटू 9n माइनस 1 माइनस 1/10 रेज़ टू n, क्योंकि देखो 1 रेज़ टू n करोगे तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 के ऊपर, 1 का पावर चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पर 1/10 रेज़ टू n हो गया, सिर्फ 10 टू द पावर n, और जो एंटायर अपॉन ये 9 था ये मल्टीप्लाई हो चुका है, ध्यान देना ये 81 हो गया यहाँ पर, 9 दिस 9 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो इट इज 81, तो फाइनल आंसर सम टू n टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी, सम टू n टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी इज इक्वल टू 7/81 into 9n minus 1 minus 1/10 to the power n and bracket closed. तो ये रहा सम टू n टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी, गिवन सीक्वेंस नॉट जीपी, सम टू n टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस, क्योंकि उस सीक्वेंस में डायरेक्टली जीपी में नहीं है, गलतियां तो करते हैं स्टूडेंट, कभी कभी डायरेक्ट जीपी में ले लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार ऐसा सोल्यूशन देखा गया है स्टूडेंट का चेक करते समय कि सॉल्यूशंस में बहुत से मिस्टेक्स करते हैं कि जल्दीबाजी में क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो ये 7 7 7 7 7 4 टाइम्स 7 है, चलो सब जीपी में है और इसमें ऐसा ऐसा हो गया, वो कैसा करके सॉल्यूशन रॉन्ग कर देते हैं, तो दैट वन इज इनकरेक्ट। करेक्ट सॉल्यूशन अभी मैंने जो अपलोड कर दिया यहाँ पर सॉल्यूशन में दे दिया, तो ये सॉल्यूशन जो अभी अभी जस्ट गिवन है इसको अच्छे से, जिसको अगर वंस समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं तो ट्वाइस थ्राइस इसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वन टाइम में सॉल्व कर लिया तो फाइनल हो गया, और बीच बीच में उसका टेस्ट भी लिखते रहना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट अगर टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी उनको मिल जाएगी और वहाँ पर टेस्ट लिखोगे तो उसका आंसर जो भी मिस्टेक रहेगा चेक करके बताया जाएगा। तो अगर इस एक्सरसाइज में या प्रीवियस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को from anywhere, so you can ask your doubt in the comment section. Just you should write the question number, sub question number and your name, और वहां पर ये क्वेश्चन को बताना है, और अगर दूसरे क्वेश्चन में भी डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, उसका सोल्यूशन अगले वीडियोस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा, और कोई भी डाउट आता है अगर पूछते हो तो उसका सोल्यूशन ध्यान रखो कि हमारे अगले वीडियोस में आने वाला है, तो वीडियोस को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, किसी न किसी वीडियो में आ जाएगा, और अर्जेंटली तो एक से ज़्यादा नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और जेई सीटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अदर रिमेनिंग चैप्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए, अदर स्टैंडर्ड्स के लिए भी प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।